Good morning, students. So, today we are going to continue the chapter The Sound of Music, and this is chapter 2, part 2. And the sound of music chapter is covered in two videos. So, in the first video, we have already covered half of the chapter. Now, we are going to cover the next part of it. So, let's continue with this chapter. In the first part, we got to know that during the reign of Emperor Aurangzeb, the playing of pungi was banned because that produced a really harsh noise that was considered a noise, so it was banned. But later on, Anai worked on it and gave it a new form, and later that instrument was known as Shehnai. Why it was called Shehnai? Because it was played by Nai and it was played in the Shah's chamber, so that instrument was called Shehnai. And we also got to know that it was Ustad Bismillah Khan who brought this instrument Shehnai from a very common stage to a classical stage. Before the arrival of Ustad Bismillah Khan, before his efforts, the Shehnai was played only in the Indian weddings, and later on it was considered to be a classically musical instrument. So the credit goes to Ustad Bismillah Khan. Then we also got to know that when Ustad Bismillah Khan was a 5-year-old child, he used to play Gulli Danda, and he belonged to Bihar. And he used to sing Bhojpuri Cheta in Bihariji's temple, where he got a big laddu as a reward. And from there, he started his journey, and at the end of his journey, he was awarded with many awards, and the highest civilian award in India, that is known as Bharat Ratna, was also conferred on him. Then we got to know that Bismillah Khan belonged to a family of musicians in Bihar. That was a very renowned family, and his ancestors were all Shehnai players. So his interest in Shehnai cultivated when he was a child, and later on in his life he combined ragas with Shehnai. That was considered impossible before that, so he started improvising and inventing ragas. Okay, so we got to know about all these things. Now we are going to continue the chapter. So let us start. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. So when Bismillah Khan was 14 years old, he went with his uncle to attend a musical conference at Allahabad. वो इलाहाबाद गए एक म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए. At the end of his recital means here performance. At the end of his performance, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, तो वहाँ उन्हें म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्योंकि वहाँ पर बड़े सारे म्यूज़िशियंस आए हुए थे, तो वहाँ पर एक म्यूज़िशियन थे उस्ताद फैज़ खां. उन्होंने जो है यंग बॉय कौन है यहाँ पर, बिस्मिल्लाह खां की बैक पर जो है पैट करते हुए कहा. पैट करना होता है थपथपाना, शाबाशी देना. तो शाबाशी देते हुए कहा, वर्क हार्ड
मेहनत करो एंड यू शैल मेक इट. यू शैल मेक इट मीन्स यू विल बी सक्सेसफुल इन इट. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. So उन्हें जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली. कब? जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई 1938 में. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और वो इतने फेमस हो गए कि उन्हें अक्सर सुना जाने लगा. लोग बड़ा इन्जॉय करने लगे उनके शहनाई प्लेइंग को. व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस. और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो वो इतने फेमस हो चुके थे. ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. तो सबसे पहले जो है उन्हें ही शहनाई बजाकर जो है लोगों को ग्रीट करने के लिए, बधाई देने के लिए कहा गया. ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग कैफ़ी. और उन्होंने वहाँ पर जो है राग काफ़ी बजाया. ये एक राग का नेम है. उसमें उन्होंने अपना पूरा दिल ही जैसे उड़ेल दिया हो, यानी कि बड़े मन से बजाया. फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो जो लोग वहाँ पर आए थे उनमें जो है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी जो है उनकी ऑडियंस में शामिल थे. एंड ही प्लेड शहनाई फ्रॉम रेड फोर्ट. लाल किले पर जो है उन्होंने शहनाई बजाई. हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बाद में ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नाम की स्पीच भी दी, जो कि बड़ी फेमस हुई बाद में. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बड़ी सारी मेमोरेबल, यानी कि जिनको लोग जो है भूल नहीं सकते, बड़ी यादगार परफॉर्मेंसेस दी इंडिया में भी और बाहर भी, विदेशों में. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान. उनकी पहली जो ट्रिप थी अब्रॉड में वो थी अफ़गानिस्तान कंट्री में. तो सबसे पहली बार अफ़गानिस्तान गए थे. वेयर किंग ज़हीर शाह वो सो टेकन इन. टेकन इन मीन्स होता है अट्रैक्टेड हो जाना, ठीक है. सो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड, ही वॉज सो अट्रैक्टेड बाय द मेस्ट्रो. मेस्ट्रो मीन्स क्या है? ये एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है मास्टर. तो वो जो है यहाँ पर मास्टर कौन है? बिस्मिल्लाह खां. वो इनसे जो है इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए वहाँ के किंग दैट गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, कि उन्होंने उन्हें गिफ्ट के तौर पर बहुत महंगे पर्शियन कारपेट्स दिए. एंड अदर सोविनियर्स. सोविनियर्स मीन्स मोमेंटो, यादगार. यादगार तोहफे भी दिए कई और सारे. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. सिर्फ जो है अफ़गानिस्तान के ही किंग ऐसे नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध थे, फैसिनेटेड थे, अट्रैक्टेड थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वो सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल. एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनका नाम था विजय भट्ट. वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को सुनने के बाद, जो कि उन्होंने किसी फेस्टिवल पर बजाई थी, दैट ही नेम्ड अ फिल्म, कि उन्होंने तो अपनी एक फ़िल्म का नाम ही रख डाला आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. यानी कि शहनाई बजाने से, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई बजाने से वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी मूवी का नाम ही रख दिया एक गूंज उठी शहनाई. ये बहुत ही ओल्ड मूवी है, आपके पेरेंट्स ने शायद देखी होगी. द फिल्म वॉज अ हिट, और फिल्म बहुत ही हिट हुई. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खां's कॉम्पोजिशन, और उसमें एक बिस्मिल्लाह खां जी का जो है गाना भी था, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. वो गाना जो है इतना ज़्यादा हिट हुआ कि लोगों ने जो है उसे बहुत ही पसंद किया. सो दैट वॉज अ बिग हिट. सो डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड. सेल्यूलॉइड वर्ल्ड जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये पहले टाइम में जो है मूवीज़ के वर्ल्ड के लिए, फिल्म्स के लिए यूज़ किया जाता था. तो उन्हें जो है ये चमक धमक वाला जो वर्ल्ड था, ये जो फिल्मी जो है जगत था, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, की उनको जो है इतनी सक्सेस भी मिली वहाँ पर इस चमकीले रंग बिरंगी दुनिया में. बिस्मिल्लाह खां's वेंचर. वेंचर क्या होता है?
कि कोई भी टास्क जो कि रिस्क से भरा हुआ है, तो उनका ये जो रिस्क से भरी हुई जो जर्नी थी इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू सिर्फ जो है उन्होंने 2 ही मूवीज़ में काम किया, यानी कि 2 ही मूवीज़ में जो है उन्होंने अपना जो है रोल प्ले किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादि अपाना। ये जो है एक कन्नड़ मूवी का नेम है, सनादि अपाना, जिसके जो है डायरेक्टर कौन थे, विक्रम श्रीनिवासा। सो इन दोनों में ही उन्होंने काम किया, उसके बाद जो है उन्होंने मूवीज़ में काम नहीं किया। I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। तो बिस्मिल्लाह खां जो है जोर डालते हुए इस बात पर कहते हैं कि मुझे जो है ये जो फिल्मी जगत है, फिल्मी जगत का जो ग्लैमर है, ये जो चमक धमक है, उसकी जो आर्टिफिशियलिटी है, उसका जो नकलीपन है, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स मीन्स कि जस्ट आई कांट एक्सेप्ट दैट, मुझे जो है वो मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने और मूवीज़ में अपना जो है रोल प्ले नहीं किया, उन्होंने म्यूज़िक नहीं दिया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। केम थिक एंड फास्ट का मीन्स है वेरी क्विकली इन लार्ज नंबर, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिलना और बहुत जल्दी से मिल जाना। तो बिस्मिल्लाह जी को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा क्या मिले, अवार्ड्स मिले, पहचान मिली। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। तो उन्हें जो है अमेरिका भी बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए। कहाँ पर, प्रेस्टिजियस यानी कि रिस्पेक्टेड लिंकन सेंटर हॉल, ये अमेरिका में एक जगह है, उन्हें जो है वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया और उन्हें वहाँ पर इनवाइट किया गया। तो वो पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। तो उन्हें जो है वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया, जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था। इन द कैनीज़ आर्ट फेस्टिवल, यहाँ पर भी उन्हें बुलाया गया कैनीज़ आर्ट फेस्टिवल में। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्हें बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए। सो ही वॉज इंटरनेशनली वेरी फेमस। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली that an auditorium in Tehran was named after him। वो इंटरनेशनली इतने फेमस हो चुके थे कि तेहरान नाम की जो जगह है, जो कंट्री है, उन्होंने तो जो है उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम ही बना दिया। तहर मौज़ीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस ऑडिटोरियम का नेम क्या रखा हुआ है, तहर मौज़ीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। उनको ऑनर्ड फील कराने के लिए उनके नेम पर जो है इस ऑडिटोरियम का नेम रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड मीन्स गिवन। सो उन्हें जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये जितने भी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं इंडिया के, ये सभी जो है उन्हें दिए गए, यानी कि वो बहुत ही सम्मानित ऑनर्ड पर्सन थे, उन्हें राष्ट्र ने बहुत सम्मान दिया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और 2001 में तो उन्हें इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है द भारत रत्न, वो भी उन्हें दिया गया, एज यू कैन सी हियर। सो विद द कोविटेड अवार्ड, कोविटेड मीन्स हियर वेरी डिज़ायर्ड, मच डिज़ायर्ड, जिसे वो चाहते थे हमेशा पाना। रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, तो वो जो है उसे अपने दिल से लगाते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं। एंड हिज आइज़ ग्लिंटिंग, ग्लिंटिंग मीन्स शाइनिंग,
विद रेयर हैप्पीनेस। और वो जो है बड़े खुशी से स्माइल करते हैं, आँखों में उनके चमक आ जाती है। ही सेड, और वो कहते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ दैट वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि हमें अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे उच्च ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग भी जो है म्यूज़िक सीखने के लिए हमारी कंट्री आ रहे हैं, यानी कि हमारे म्यूज़िक को अपना रहे हैं, हमारे म्यूज़िक को सीखना चाहते हैं। तो हम क्यों ना अपने म्यूज़िक को अपने बच्चों को सिखाएं। सो दिस इज़ हीज़ मैसेज कि हमें अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए, ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि वैसे तो जो है बिस्मिल्लाह खां बहुत सारे कंट्रीज़ में घूमे हैं। खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, उन्हें प्यार से जो है खान साहब कहा जाता है, लोग उन्हें प्यार से खान साहब कहते हैं। इज़ एक्सीडिंगली मीन्स एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया घूमने के बाद भी आज भी उन्हें जो है सबसे अच्छे शहर कौन से लगते हैं, बनारस और डुमराव, ये दोनों जगह उनकी फेवरेट हैं, दोनों ही उन्हें पसंद है। अ स्टूडेंट ऑफ हीज़ वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द USA। एक बार उनके स्टूडेंट ने उनसे कहा कि वो चाहता है कि वो जो है USA में अपना एक जो है स्कूल खोल ले, अमेरिका में अपना जो है एक शहनाई सिखाने का स्कूल खोलें और उसके जो है हेड बन जाए, यानी कि वो अपना एक स्कूल चलाएं USA में। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी किया कि वो बनारस का जो माहौल है, जो चारों तरफ की जो इमारतें हैं, उन सब को जो है वहाँ पर रिक्रिएट कर देगा, यानी कि देखने में उन्हें वो जगह बनारस के जैसी ही लगेगी। तो कैसे लगेगी बनारस के जैसी वो जगह? बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। रेप्लिकेट करना क्या होता है, देखिए, एग्जैक्टली कॉपी करना। उसने कहा कि जो टेम्पल्स बनारस में हैं, मैं सेम टेम्पल्स वहाँ पर बनवा दूँगा, उनकी दूसरी कॉपी वहाँ पर बनवा दूँगा, ताकि आपको फील हो कि आप बनारस में ही हो। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि वो मंदिर तो बनवा देगा, लेकिन क्या वहाँ पर रिवर गंगा को भी जो है वो ले जा सकेगा, यानी कि क्या वहाँ पर वो गंगा को भी जो है क्रिएट कर पाएगा। लेटर, और बाद में, ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सैड, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। लोग कहते हैं कि वो कहा करते थे कि इसीलिए मैं जो है जब भी किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मैं चाहता हूँ, यर्न करता हूँ, मेरी इच्छा होती है, आई वॉन्ट टू सी हिंदुस्तान, यानी कि कहीं पर भी होने पर मेरी ये इच्छा होती है कि मैं हिंदुस्तान में हूँ और मुझे अपनी कंट्री वापस आने की बड़ी जल्दी होती है। मेरे मन में यही इच्छा रहती है कि मैं हिंदुस्तान को देखूं। वाइल इन मुंबई, वो कहते हैं जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तभी भी मैं बनारस के बारे में सोच रहा होता हूँ, एंड द होली गंगा, और गंगा के बारे में। होली मीन्स पवित्र, शुद्ध, कि मैं जो है होली गंगा के बारे में, सैक्रेड गंगा के बारे में ही सोच रहा होता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव, तो मुझे जो है अपनी जगह जो बिहार में है डुमराव, वहाँ का यूनिक, जैसा कि कहीं और नहीं है, वहाँ का जो माटा ऑफ डुमराव है, वो जो जगह है, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उस जगह को मिस करता हूँ, यानी कि मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा बिस्मिल्लाह खां जी को अपनी जो है प्लेसेस, बनारस जहाँ पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया, और डुमराव जहाँ पर वो पले बड़े, उन्हें ये दोनों ही प्लेसेस अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं।